Okay, this is what we have completed up till now. This is just a revision I want to take. That is, we have completed. We have not touched chapter number 1 because there are basic things that we'll be covering later on. We have gone into multi-threading with Java. We have gone with the collection framework in more detail. Then we have connected with a GUI, that is programming concept, using how to create that components and how to make a designing. So we have gone for that also. At the end, we have wind up with a JDBC connection, and where we have gone for CRUD, that is create, read, update, and delete. All functionalities we have checked using MySQL database. Now there are only 3 chapters remaining. The last chapter is just a theoretical part. Now these are the 2 basic chapters. The chapter number 6, that is our session, is dealing with this Java network programming and RMI. Now the weightage of this chapter will be 5 session, and it was 8% of weightage is be there. Approximately 10 marks question will be asked in university. Basically it will be on programming. It will be checking your programming skill as far as this chapter is concerned. So here basically there are 2 types of concept we need to understand. That is, we will be doing a networking using a socket, and we'll be doing some networking using an RMI also. So different types of programming will be covering in this chapter. Now what is there in this chapter, that is, we'll be going for the introduction of what is exactly the socket, what is the meaning of port, what is the meaning of proxy server. Then we'll be going into detailed description about TCP and UDP protocols. These are the 2 types of protocol being used in Java networking classes. So we'll go into detail. What is most important here is that we need to understand the difference between the 2 types of protocols. So when to use and why to use, that this question answer should be there with the student whenever they use networking. So when to use TCP protocol or when to use UDP protocol. So there are different types of classes that help to implement the TCP and UDP protocol. So we'll go into detail about that also. Then we'll be developing different types of application using TCP and UDP protocols. So as it is said that we have to develop something, so we'll be creating some chat applications, and where we'll be doing a chatting of client and server. So that is one major things of this part 1 of your chapter. So part 1 of the chapter is basically Java networking programming using server socket, using TCP and UDP protocols. So after that, we'll be entering into RMI architecture, where we'll be talking about some theoretical concept like what is stub and what is skeleton, what is marshalling and what is unmarshalling, and finally we'll be developing some applications using RMI. So this is what basically the chapter number 6 is there. So we'll start today's session of networking. If you find any doubt, you can stop a session and you can speak at that moment also. So here the chapter is your Java networking. Yes, I have added JDBC, but there is no need. So we'll be talking only on Java networking. So basically what our syllabus has specified, we will be covering each and every point. Apart from that, we'll be entering into some different complex type of programming where you'll be very much comfortable with the networking. So that is most important for us. So basically when we talk about the networking, we need to understand there are different types of protocols being specified whenever we talk about networking. So in general, when we talk about networking, the term network programming refer to writing a program that execute across multiple devices, that is on multiple programs in which the devices are all. So here we will not execute a program only on your individual system, but will be transferring some message to your server, and server will be doing some processing and will be getting an output. So client will be somewhat different and server will be somewhat different. So whenever we are doing any networking program, one thing you have to keep in mind, we have to import a package called as java.net package. So all the classes which are required for the purpose of implementing networking in Java, all are been written into a java.net package. So we have to import the package called as java.net. Now when we import this package, there are different types of protocols we have to follow. So it is either or choice of a student or a requirement. So which type of protocol you want to use whenever you go for the programming. So basically there is a TCP protocol which is always called as we call it as a transmission control protocol. Now what is the basic importance of this protocol? We'll go into the differentiation between the 2 protocols in further. Now one thing you have to keep in mind, a TCP is nothing but it is a reliable communication. It is a reliable communication between the application.
Now TCP is typically used over the internet. So whatever things we are doing nowadays, that is whenever we are browsing something on the internet, we are following one type of protocol. The name of the protocol is TCP IP protocol. So whatever thing you do on the internet nowadays, it is always following one protocol, that is a TCP protocol. Now we are only familiar with TCP frequently because there are 7 layers of TCP, what do you call it, 5 layers of TCP protocols, and as far as networking is concerned, you will be knowing of what is exactly there in this protocol. But the importance of this protocol is that it is a reliable communication. When a client is being connected to the server, you cannot disconnect it explicitly. So that is only if there is some situation, if there is some error, then only the connection will be lost. Now as far as the UDP protocol is concerned, it is we call it as user datagram protocol. TCP is called as a transmission control protocol, and UDP is called as a user datagram protocol. Now it is called as a connectionless protocol. Now here the client is not directly connected to the server, it is only connected when there is a work been assigned to the server. You want to execute that thing, at that situation only the client will be get connected. So majorly your server will always remain idle when we go for UDP protocol. So indirectly the efficiency of server will be increasing whenever we talk about the UDP protocol. But when we use a TCP protocol, you are connected directly to the server, so automatically if the number of client increases, automatically the server, what we call as slowdowns frequently if the number of client increases. So each protocol has its own importance. On its importance, it has been used frequently in the programming called as a network. Now in general, what is exactly the meaning of these two protocol? We'll go in a diagrammatic representation. See, in TCP protocol what is happening is that it is slower, because though it is directly connected, so if a client is connected to the server, it is directly connected, and there is always a connection being running in between the client and server. So automatically what will happen is that it slow down the reliable transfer. So there is always a slow process of connecting a client and server. Whenever you are transferring some data from client to server or server to client, surely it will take more time compared to another type of protocol, that is UDP protocol. So this is one of the drawback of TCP protocol, that is slower as compared to the other type of protocols. And typically this type of protocol is used when we talk about emails and web browsing. So what we do frequently using a mobile or using a PC or using a tab, so email browsing or searching something on our internet, it is only been done by the TCP protocol. So that is one more important thing. Now here there is a special type of what you call as a connection being followed, that is called as a unicast. Now see, this is a client and red, and you want to connect to the server. So client and server is been directly connected. So there is only one way of this, is called as a unicast, that is universal, it is unique casting, that is interaction between the two devices only. So that is only one thing, that is called as a unicast. So it supports, TCP supports only unicast. But when we talk about UDP protocol, now UDP protocol, it is what we call as fast but not guaranteed transfer. So just like what we do, basically when I want to write some letter, and when I post, I want all students to get communicated that your classes have started. Now I am using one technique called as writing a letter and posting it on your post. Regularly what we do in a post, I am writing a letter and I am putting it into the post, and then postman is giving a letter to everybody at everyone's house. So what is happening in this situation is that it is following the UDP, user datagram protocol. Now what is happening, I cannot assure कि अगर मैंने 10 स्टूडेंट को मैंने अगर लेटर भेजा तो सभी 10 स्टूडेंट को लेटर मिलेगा, किसी एक बंदे को नहीं भी मिल सकता है, या फिर मिसकम्युनिकेट भी हो सकता है, किसके बाजू वाले के घर में भी जाके वो लेटर गिर सकता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अनरिलायबल प्रोटोकॉल. सो यूडीपी प्रोटोकॉल इज़ कॉल्ड एज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, और इसको हम हर बार बोलते हैं इट इज़ नॉट गारंटेड ट्रांसफर. अगर आपकी ट्रांसमिशन के ऊपर आपको गारंटी नहीं चाहिए, आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उन सिचुएशन में यू कैन यूज़ यूडीपी प्रोटोकॉल. नाउ दिस प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली यूज इन म्यूजिक स्ट्रीमिंग. जो हम यूट्यूब पे ऊपर म्यूजिक स्ट्रीमिंग देखते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज क्लाइंट और सर्वर जब भी इंटरेक्ट हो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब में जब भी डेटा वहाँ से रिट्राइव किया जाता है आपके मोबाइल के अंदर, सो वो फ्रीक्वेंटली पैकेजेस में डिवाइड करके भेजा जाता है, बिकॉज यू वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ आर वेरी बिग फाइल्स कंपेयर टू योर टेक्स्ट फाइल्स. सो अगर वीडियोज़ और ऑडियोज़ आपके मोबाइल के ऊपर दिखना चाहिए आपको, तो वो कंटिन्यूसली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर देयर शुड बी सम पैकेजेस कमिंग टू एंड फ्रो बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्विस. सो बेसिकली your YouTube and all those things, that is music streaming and all those things you are doing is basically under the category called as a UDP. So अगर हम ढूंढेंगे
बड़े वाले डेटा के ऊपर, तो इट इज़ ऑलवेज यूडीपी प्रोटोकॉल प्रेफर्ड. बट अगर वेन एवर यू वांट टू गो फॉर द emailing and web browsing, you want a fast record retrieval and immediately displayed on a screen, you are using this TCP protocol. Now unicast means what? Only one client is connected to the one server. Now here what we will see is that UDP protocol will be allowing unicast also, that is one server will be connected to the one client also, one server will be connected to the multiple that we call as a multicast, that is one is connected to the multiple, that is we can say 1, 2 or 3, that's it, not all. And the third last one is broadcast. Now broadcast means what? All the clients which are being connected to the server will be getting the information to and fro. So UDP protocol will be allowing unicast, multicast, a broadcast mechanism of connection, whereas when we talk about TCP protocol, it will be allowing only unicast way of communication between client and server. Are you clear with this? Yes, everybody? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. yes sir, this is the basic thing you have to keep in mind. This question is basically asked when you go for the interviews. So what is the difference between TCP and UDP protocol? So as a broader view, you should be very much clear, that is TCP is connection oriented, whereas UDP is connectionless. This is reliable, TCP is a reliable source of transmission, whereas UDP is unreliable source of transmission. Basic example की अगर हम बात करें, in TCP protocol we call it as a mail or web browsing, it comes under the TCP protocol, whereas in UDP the music streaming and VoIP, so that is runtime IP being generated. So basically we are not having that much examples in VoIP, but we have a clear example, that is a music streaming, it has been there. As far as the casting is concerned, unicast is only supported by the TCP, whereas unicast, multicast and broadcast, all three types of casting is been what we call as supported by the UDP protocol. So this is the basic two differences between the TCP and UDP as far as diagrammatic representation is concerned. Now we'll go into one more diagrammatic representation, that is synchronization and unsynchronization. So synchronization, basic example, हम अगर DSP चौक में खड़े हैं, अगर वहाँ पर सिग्नल चालू रहेगा तभी जाके लोग सिस्टमेटिक तरीके से अपने सोर्स से डेस्टिनेशन यानी रोड क्रॉस कर सकते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं. And what is asynchronous? If there is no signal and there is no policeman, anyone can take his path and can move anywhere. So there is a situation वहाँ पर deadlock situation आ सकती है. So now in TCP/IP protocol you will find there is a synchronized and asynchronized way of communication. सिंक्रोनाइज तरीके से भी क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट होता है और असिंक्रोनाइज तरीके से भी क्लाइंट. सो वेन एवर एनी क्लाइंट इंटरेक्ट विद द सर्वर इट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनाइज वे, वेरेज अगर सर्वर के साथ बहुत सारे क्लाइंट उसके साथ कनेक्टेड है एंड ही वांट टू गिव अ रिप्लाई, सो ही कैन यूज अ सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज वे, बोथ वे फॉर गिविंग data from a server to the client. So synchronize is just a connection from the client to the servers, but when we server transmit something to the client, so it is either a synchronized or it is unsynchronized. So that is one more important thing on TCP/IP. And you will find whenever any client is requesting some data and server is sending back that data, there is always an acknowledgement given by the client to the server कि मुझे मैंने जो डेटा मांगा था मुझे वो मिल चुका है. So there is a mechanism called as acknowledgement in TCP/IP protocol. अगर हम UDP प्रोटोकॉल की बात करें, UDP प्रोटोकॉल के अंदर there is first request is being given from the server to the client. So this is somewhat different. A request is given from the server to the client, and then after that client will be responding to the server. Again responding is only from the client to the server, only the request is given from the server to the client. ये थोड़ा उल्टा काम करता है, पहले सर्वर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता है फिर बाकी क्लाइंट उसके डेटा ट्रांसफर करता है. बट यहाँ पर सिंक्रोनाइज वे होता है, टू एंड फ्रो डेटा ट्रांसमिशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में. So this is the one thing you have to keep in mind, whereas TCP and UDP protocol is there. Synchronization and asynchronization is only in TCP, whereas request and response, these are the only two things which is possible in UDP protocol. Now whereas this differentiation between the two protocols in broader view will go into the each and every point, and will go for the elaboration of the basic differences in the technical word. Now in TCP protocol, because it is a reliable protocol, because we use basically this type of protocol only in your real life. So TCP is a connection oriented protocol. This is the most important thing that you have to keep in mind. This is a connection oriented protocol. Connection oriented means, what is exactly the meaning? That is the communication devices should establish a connection between the transmission data and should close the connection after the transmitting the data. So there connection oriented means मतलब
क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डेटा ट्रांसमिट होने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने के बाद योर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली. सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज, जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होता तब तक कनेक्शन लूज नहीं हो सकता. दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज देयर इन योर टीसीपी प्रोटोकॉल. नाउ इन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द डेटाग्राम. हम टेलीग्राम सुनते हैं, मोबाइल के टेलीफोन सुनते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम, डेटाग्राम. नाउ डेटाग्राम इज जस्ट लाइक अ पोस्टमैन व्हाट वी हैव सीन इन अ प्रीवियस ओल्ड डेज. कोई बंदा लेटर लिखता था और फिर वो बॉक्स लाल डब्बे में डालता था, फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस विल बी ट्रांसमिटिंग टू द लोकेशन उसके डिस्ट्रिक्ट में, फिर देन तालुका प्लेस, देन उसके छोटे से विलेज में, फिर बैक में विलेज के बाद वो फिर उनके घर पे पहुंचता था. ह्यूज मैकेनिज्म, बड़ा चेन होता था डेटा ट्रांसमिट करने का. सेम वे इट इज़ बिन फॉलोड इन यूज़र डेटाग्राम. सो यहाँ पर जो डेटाग्राम है, टेलीग्राम है, जो पुराना जो टेलीग्राम था उसको हमने अभी डेटा के रूप में कन्वर्ट किया. सो दैट विल कॉल इट एज अ डेटाग्राम. सो टेलीग्राम जो था पुराना, तो उसी को हम अभी डेटा ट्रांसमिट करें, इसको विल कॉल इट एज अ डेटाग्राम. सो इन डेटाग्राम, दैट इज डेटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, दिस इज बिकॉज देर इज नो ओवरलोड. सो it is datagram oriented, or it is always called as a connectionless protocol. So because there is no overhead for the opening a connection, यहाँ पर हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, maintaining a connection and transmitting a connection. So हम यहाँ पर we are not opening any connection, we are not maintaining that connection, we are not transmitting any through connection. So that is what it is called as UDP. Now here ये जब क्यों कब यूज़ करना है, UDP is efficient for a broadcast. अगर आपको आपका मैसेज बहुत ही ब्रॉडर व्यू में एक्सपोज करना है, उस सिचुएशन में यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट. ये तीनों टाइप ऑफ कास्टिंग इज बीइंग सपोर्टेड इन यूडीपी. सो बेसिकली यूडीपी इज एफिशिएंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग टाइप ऑफ नेटवर्क्स. सो दिस इज वन थिंग. नाउ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, टीसीपी इज रिलायबल. इसको हर बार रिलायबल बोला जाता है बिकॉज इट इज़ गारंटीड डिलेइंग ऑफ डेटा फॉर द डेस्टिनेशन रूट. सो इट इज़ गारंटी डिलेइंग, ये डिले नहीं करता आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. वेयर एज द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन कैनॉट बी गारंटेड इन यूडीपी. अगर आपने भेजा डेटा तो 100% आपके सर्वर के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यू कैनॉट गारंटीड इन यूडीपी प्रोटोकॉल. ना अनरिलायबल जो काम होते हैं, जैसे हमें कुछ म्यूज़िक सुनना है, वीडियोस देखना है, तो उस सिचुएशन में अगर थोड़ा देर से भी दिखाई दिया या फिर नहीं भी दिखाई दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती. तो उस सिचुएशन में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर यूडीपी प्रोटोकॉल. अगर आपके क्लाइंट के आपको आपका मेल चेक करना है और आपको जब भी क्लिक करने के बाद इमीडिएटली आपको मेल चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप यूडीपी प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करते. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर टीसीपी प्रोटोकॉल. सो दिस इज़ वन बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. Now TCP provides extensive error checking. यहाँ पर extensive error checking mechanism है. It is because it provides a flow control and acknowledgement of the data. So here one basic thing is important in TCP is that it has an extensive error checking mechanism, जो यहाँ पर नहीं है UDP में. So UDP has only the basic error checking mechanism using checksums. So there is a mechanism called as a checksums. Here there is a mechanism called as acknowledgement. तो आप acknowledge करते हैं कि आपके क्लाइंट ने सर्वर को भेजा, सर्वर ने क्लाइंट को भेजा, तो acknowledgement भी बैक में रिप्लाई करता है. So this is error checking mechanism is there, whereas there is no error checking mechanism. There is error basic error checking mechanism which is not that much important as far as UDP protocol is concerned. So these are the basic things. And last in this slide, sequence of data is a feature of transmission control protocol. This means that the package arrive in order at its relief. तो जिस तरीके से आपने डेटा ट्रांसमिट किया है, उसी तकनीक में, उसी फ्लो में डेटा आपके सर्वर के ऊपर जाएगा. सर्वर ने अगर कुछ चीज़ आपको भेजा है क्लाइंट के ऊपर, तो उस जो टेक्निक में उसने उसको डिवाइड किया है रिकॉर्ड को बिट्स एंड बाइट्स में, वही रिकॉर्ड आपको उसी तरीके से रिसीव हो जाएगा. सो दिस इज सिक्वेंशियल और व्हाट यू कॉल एज अ डेटा ट्रांसमिशन. यहाँ पे देयर इज नो सीक्वेंस, कोई डेटा पहले आएगा, कोई बाद में आएगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है इस सिचुएशन में. कुछ पैकेजेस बीच में से गायब भी हो सकते हैं. It is unreliable, so it is called as there is no sequence of data in UDP. So if ordering in the sequence, it has to be managed by the application layer. So ये हमेशा आपके एप्लीकेशन लेयर जो होता है ना, TCP और what do you call it, ISO लेयर आपने पढ़े होंगे ना साथ, OSI reference model. So OSI reference model is nothing, a model that is for the purpose of connectivity between the client and server. तो वहाँ पर जो लेयर होता है टॉप में, that is application layer,
तो ये लेयर काम करता है आपके यूडीपी का जो भी टेढ़ा मेढ़ा काम है उसको सीधा करके आपको रिप्रेजेंट करने का जो काम करता है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर इन टीसीपी आईपी लेयर, टीसीपी आईपी protocol, this is not dependent upon your top layer that is of your OSR reference model, that is application layer के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करता है। Now we'll move further for the if anyone have a doubt you can speak with me now, if not then we'll move further for the again some basic differences between the two protocols. Now in TCP it is comparatively slower than UDP, this is I have said that जब भी दो चीज़ें कनेक्ट होते हैं तो इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम मैनेजमेंट। सो टीसीपी इज़ वेरी कंपैरेटिवली लोअर इन स्पीड, वेर एज यूडीपी इज़ फास्ट, सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द टीसीपी। नाउ इन टीसीपी रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेज इज़ पॉसिबल। अगर आपका ट्रांसमिट होते समय कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको रीट्रांसमिट करने का मैकेनिज्म टीसीपी प्रोटोकॉल में है। बट व्हेन वी गो फॉर यूडीपी प्रोटोकॉल, अगर आपका डेटाबेस में लॉस भी हुआ तो भी उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर लॉस हुआ, अगेन इट इज द लॉस इज नॉट बिन रिटेन और इट इज नॉट बिन रीट्रांसमिटेड बैक बाय द यूडीपी प्रोटोकॉल। नाउ इन टीसीपी प्रोटोकॉल 20 to 80 बाइट्स वेरिएबल लेंथ हेडर, 20 to 80 बाइट्स वेरिएबल लेंथ हेडर्स आर बीन यूज्ड, whereas in UDP there is only 8 bytes fixed length header। सो सिर्फ 8 बाइट का ही पैकेज बनता है, वही 8 बाइट का पैकेज हेडर इंफॉर्मेशन लेके जाता है। यहाँ पर 20 to 80 इट इज़ अ बिग साइज कंपेयर टू द पैकेजेस आर बीइंग क्रिएटेड। सो TCP इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू UDP इन दिस वे। नाउ TCP इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ हैवी वेटेड, इट इज़ हैवी वेटेड बिकॉज उसको ज़्यादा टाइम लगता है कनेक्टिविटी के लिए और कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, वेर एज UDP इज लाइट वेटेड, it requires very less time because it is fast, simple and it is not that much dependent upon the connection. Now TCP doesn't support broadcasting, and we have seen that there is only unicast being supported, so there is no broadcasting, whereas UDP supports broadcasting। अगर आपको broadcasting कुछ मैसेज करना है, you have to go for UDP protocol। Then TCP is used, यानी जो TCP नाम का जो प्रोटोकॉल ये किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेसिकली यूज इन HTTPS, that is HTTP secure, that is FTP file transmission, SMTP that is simple mail transmission protocol, and Telnet। So hypertext transfer protocol, secured hypertext transfer protocol, file transmission protocol, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और टेलनेट में TCP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, whereas UDP protocol is used in DNS, that is domain name system, DHCP that is dynamic host configuration protocol, TFTP, SNMP, RIP and VoIP। so these are the different types of protocol being used। यहाँ पर UDP protocol वर्कआउट होता है या फिर यूज़ किया जाता है। Yes, anyone any doubt as far as TCP and UDP protocol is concerned? अगर आपको ये दो चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आई तभी जाके हम इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एनी डाउट एनीबडी? यस यस, एनी डाउट? No, sir. Okay. No, sir. Okay, so we'll move further for the another point of this, that is a widely used Java networking। so in Java networking जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग जो होते हैं ना, नेटवर्किंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती है वेन एवर वी आर यूजिंग जावा इन नेटवर्क्स? सो देयर इज़ एन IP एड्रेस, हर एक कंप्यूटर को IP एड्रेस होता है, वो हम यूज़ करेंगे। देयर आर प्रोटोकॉल्स, जैसे हमने TCP और UDP प्रोटोकॉल के यूज़ किए हैं तो उस तरीके के कुछ प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। सो आइदर यू विल बी यूजिंग TCP और आइदर यू विल बी यूजिंग UDP protocol। so IP address is important of your computer, protocols for the connection is important, port number, because you know there are 65,000 port in your computer and port number 1 to port number 1024 are reserved for your computer internally। यानी ये पोर्ट क्या काम करते हैं, जैसे अगर आपका CPU है उसको मेरे माउस यूज़ करना है तो आई एम यूजिंग सम पोर्ट, मुझे कीबोर्ड यूज़ करना है CPU के साथ कनेक्टिविटी, आई एम यूजिंग अ पोर्ट, मुझे ऑडियो सुनना है, स्पीकर लगाने हैं मोबाइल को, मुझे ऑटो कैम लगाना है, वेब कैम यूज़ करना है, आई वॉन्ट टू यूज़ माई पेन ड्राइव, आई वॉन्ट टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम इंटरनेट, आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई प्रिंटर टू माई PC, आई वॉन्ट टू कनेक्ट अ स्कैनर टू माई PC।
तो ये सभी के लिए पोर्ट होते हैं। सो 1024 पोर्ट आर रिजर्व फॉर योर कंप्यूटर, तो वो पोर्ट नंबर भी हमें चाहिए। मैक एड्रेस, that is machine address, is also required whenever there is connectivity between the client and address, because IP address is your what we call as address of your internet, that is internet protocol, but MAC address is your address of your personal, your mobile, your computer। ये यूनिक होता है, जैसे IMMA नंबर होता है आपके हर एक मोबाइल के लिए, उसी तरीके से MAC एड्रेस होता है हर एक PC के लिए। जो भी कंप्यूटर नया जनरेट होता है ऑटोमेटिकली उसको यूनिक नंबर एड्रेस नाम दिया जाता है, वो यूनिक नाम होता है मैक एड्रेस। जो भी हैकिंग होती है, हैकिंग जब भी होता है तब उस सिचुएशन में आपके मैक एड्रेस से आपका कंप्यूटर किसने हैक किया वो आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉट IP एड्रेस तो यूज़ किया ही जाता है, बट मैक एड्रेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जैसे हम मोबाइल के ऊपर सिम कार्ड चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, तो मोबाइल डिवाइस आइडेंटिफाई हो सकता है because there is IMMA number of your mobile, same way there is a MAC address for your each PC, so वो भी यूज़ किया जाता है। then there are different types of protocol, that is connection oriented and connection less protocol, that is TCP and UDP protocol भी यूज़ किए जाते हैं। apart from that there are different protocols, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा HTTP, FTP, SMTP, ये कुछ अलग तरीके से प्रोटोकॉल्स भी हम यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, there is one more unique thing, that is socket। ये कंसेप्ट भी एक क्लास होता है, एक जावा ने बनाए हुई एक क्लास है स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये सॉकेट नाम की कोई क्लास है, वो भी आप उसके अंदर यूज़ करते हैं। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज द नेटवर्किंग इज कंसर्न। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें इन सॉकेट प्रोग्रामिंग, दैट इज विल बी यूजिंग राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग सर्वर सॉकेट, दैट इज विल बी फॉलोइंग TCP प्रोटोकॉल। नाउ when we talk about client is having a socket and it goes for the connection. Once the client is socket is started and connection is done, for that purpose जब भी client चालू होने से पहले server चालू होना बहुत ज़रूरी है। So basically one thing you have to keep in mind, you have to write a program of your server first, then after that you have to write a program for the client. So server के program में socket होना ज़रूरी है, बाइंडिंग होना ज़रूरी है सॉकेट के साथ, लिसनर होना ज़रूरी है, यानी उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ कोई इंटरेक्ट करना चाहता है, उसको ढूंढना पड़ता है हमेशा क्लाइंट कौन को उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो वेन एवर यू वांट टू ओपन समथिंग, यू हैव टू ओपन अ सॉकेट, यू हैव टू बाइंड दैट सॉकेट विद, यू हैव टू लिसन द क्लाइंट रिक्वेस्ट कि उसको कनेक्ट होना है। एंड देन आफ्टर दैट ये तीन चीज़ें जब भी चालू हो जाएंगे तब जाके सर्वर चालू हो जाएगा। सर्वर वंस सॉकेट इज स्टार्टेड, because connection of your client and server is always with the help of socket. Socket ही connect करता है because is a special type of class that is connecting a server with the client. अभी socket चालू होने के बाद it will be connecting, it will be searching for the server, server accept करेगा request, तब जाके वो connect हो सकता है। Then there is a read and write mechanism, आप लिखो पढ़ो, आप जो भी request करेंगे सर्वर उसके ऊपर वर्कआउट करेंगा। ये जो येलो कलर में हमने दिखाया, this is nothing but a communication between client and server. एंड फाइनली आपका काम होने के बाद यू हैव टू क्लोज योर क्लाइंट फर्स्ट। आफ्टर क्लोजिंग योर क्लाइंट द एंड फाइल्स विल बी सेंड, विल बी रीड, एंड देन फाइनली यू कैन स्टॉप योर सर्वर। यू कैनॉट स्टॉप सर्वर डायरेक्टली, तो सबसे पहले चालू होता है सर्वर और सबसे लास्ट में एंड होता है सर्वर। क्लाइंट जैसे उसका काम है वैसे ओपन हो जाएगा, कनेक्ट करेगा, वर्कआउट करेगा, एंड देन फाइनली इट विल बी क्लोजिंग। सो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म विल फॉलो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वर सॉकेट प्रोग्रामिंग। नाउ ये जो हमने ऊपर डायग्राम में निकाला था, ये ऊपर सॉकेट है क्लाइंट का, ये सॉकेट है सर्वर का, ये दो सॉकेट होते हैं अलग तरीके से। तो हमें डायग्रामेटिकली ये जो हमने दिखाया है इसको हम प्रोग्रामेटिकली कन्वर्ट करेंगे। सो विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग अ सॉकेट फॉर द क्लाइंट ऑल्सो, विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम क्रिएटिंग अ सॉकेट फॉर ए सर्वर ऑल्सो। सो दोनों के सॉकेट थोड़े अलग होते हैं, नाम भले ही वो सेम होगा बट दोनों का मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म अलग है। Now this you have to write on your paper. Now how to create a socket in a client and how to create a socket in a server, ये थोड़ा अलग तरीके से होता है। Now अभी हम सर्वर की बात करेंगे। Now whenever we are writing creating a socket object, so here I am using a socket called as server socket. So you have to use a class called as a server socket and you have to use a class called as a socket. अगर आपको ये इसको बनाना है अलग, यानी आपको सर्वर को बनाना है, क्योंकि सर्वर मतलब क्या, एक कंप्यूटर ही होता है जैसे आप यूज़ करते हैं वही कंप्यूटर होता है, पर उसको आपको सर्वर बोलना है।
तो आपको उसको अलग तरीके की क्लास यूज करनी पड़ती है. द नेम ऑफ अ क्लास इज सर्वर सॉकेट क्लास. Now what is there in this class is that you have to give a port number. Now what is this port, what is this 6666? I have given a unique number. Now you can give a number from 1024 onwards to any number to 65,000. बस ज़्यादा करके हमने क्या यूज़ करते 8080 7070 6060 2020 2222 ऐसे कुछ भी पोर्ट नंबर यूज़ करते ग्रेटर देन 1024 एंड लेस देन बेसिकली 9090 यानी 9000 तक के पोर्ट के अंदर ही हम यूज़ करते हैं बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर. तो यहाँ पर मैंने कुछ तो भी एक नंबर डाल दिया दैट इज 446666 4 टाइम्स आई हैव यूज्ड दिस 66. नाउ दिस मीन्स मेरा सर्वर जो है अभी यह है 6666 पोर्ट नंबर से चालू हो चुका है एक स्पेसिफिकली एक लिमिटेड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. यानी अगर आपने इसके अंदर जो भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक स्पेसिफिक कोड को ही एग्जीक्यूट करेंगे, सभी कोड को नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ दिस सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट एसएस इज रिक्वायर्ड. नाउ आई वांट टू एक्सेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट. तो ये सॉकेट काम करेगा. सो सॉकेट एस इज इक्वल टू एस एस दैट इज सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट. यानी ये डायग्राम में हमने बोला है ये एक्सेप्ट करेगा जो भी उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते उसको ढूंढेगा जो भी रिक्वेस्ट है और उसके बाद कनेक्ट करेगा. उसके बाद वो बन जाएगा सॉकेट का ऑब्जेक्ट एस. So we are using object of server socket for accepting and converting into a socket. So यहाँ का socket थोड़ा अलग होता है और client में बहुत simple होता है. client को क्या पता होना चाहिए client socket is very simple. socket s here I am not use new keyword for creating an object of a socket class, but here I will be using a keyword called as a new and I will be passing two parameter. localhost यानी मुझे सर्वर जो चाहिए मैं सर्वर का IP एड्रेस भी डाल सकता हूँ या फिर मुझे मेरे खुद के कंप्यूटर को ही सर्वर करना है. आई विल बी राइटिंग लोकल होस्ट. तो लोकल होस्ट मतलब क्या आपके खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस. एंड पोर्ट नंबर यानी कौन सा पोर्ट उसके साथ वो काम करेगा. तो आई हैव यूज दिस 6666 पोर्ट नंबर. सो क्लाइंट को सर्वर का नाम पता होना चाहिए, क्लाइंट को सर्वर का पोर्ट पता होना चाहिए जिस पोर्ट से वो कनेक्ट होने वाला है. सर्वर को खुद का पोर्ट पता होना चाहिए कि वो जिस पोर्ट से वो ओपन कर रहा है क्लाइंट को इंटरेक्ट करने के लिए. एंड आई हैव टू सर्वर को एक्सेप्ट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट. सो दिस आर द टू बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड whenever you are creating a object of a socket in client and object of a socket in a server. Are you clear with these two things? Yes, yes, yes everyone, are you clear with this? These two lines we have to write in server and this one line we have to write in a client. तभी जाके हमने सर्वर सॉकेट को एक्टिवेट कर सकते. जब तक हम सॉकेट को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता. सो अब आगे जाएंगे. आगे हमें हमारा देखो डायग्राम में अभी कनेक्शन हो चुका है. यानी ये 2 लाइन का जो कोड था सर्वर का और ये 1 लाइन का कोड है. ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा काम करता है. यहाँ तक हम आ चुके. यानी क्लाइंट सर्वर का सॉकेट से लेकर कनेक्शन तक, सर्वर का सॉकेट से लेकर एक्सेप्ट तक, ये 3 लाइन का कोड ही आपका काम करेंगे. नाउ बेसिक काम होता है आपका क्लाइंट और सर्वर के साथ इंटरेक्शन करना. कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है. नाउ हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, इसके बाद हम रन करेंगे अगर टाइम परमिट किया तो. हम क्लाइंट से कुछ तो भी सर्वर को भेजेंगे, सर्वर फिर से वो हमें चीज़ें फिर से बैक रिप्लाई करके भेजेगा. सो देर इज रीडिंग एंड राइटिंग मैकेनिज्म बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. कुछ क्लाइंट लिखेगा, सर्वर वो पढ़ेगा, सर्वर कुछ लिखेगा, क्लाइंट और पढ़ेगा. तो ये लिखना पढ़ने का जो काम है वो आपके लिए एक अलग तरीके का पैकेज करेंगे दैट इज java.io पैकेज. इनपुट एंड आउटपुट, ये जो इन एंड आउट हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ये नेटवर्किंग नहीं कर रहा है. नेटवर्किंग सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कनेक्शन को, कनेक्ट कर रहा है सर्वर के साथ. 1 सेकेंड. सो देर आर यू हैव टू यूज दिस पैकेज दैट इज java.io पैकेज. जब भी आपको कुछ भेजना है और कुछ लेना है ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. और ये जब भी आप यूज़ करते थे सॉकेट और ये java.net पैकेज के अंदर है. तो हमें 2 पैकेज यूज़ करने पड़ते हैं, java.net पैकेज एंड java.io पैकेज. नाउ इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या, जो आपके क्लाइंट या फिर सर्वर के अंदर आ रहा है. इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या, दैट इज कमिंग इनटू योर सिस्टम. एंड व्हाट इज आउटपुट स्ट्रीम, दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम योर सिस्टम.
इनपुट स्ट्रीम मतलब सिस्टम के आपके सर्वर के अंदर आ रहा है या फिर आपके क्लाइंट के अंदर आ रहा है, जो किसने क्लाइंट ने भेजा या फिर सर्वर ने भेजा, जो आपकी तरफ आ रहा है आपके सिस्टम के अंदर, जो वो प्रोग्राम को इनपुट देने वाला है, दैट इज बीन हैंडल्ड बाय इनपुट स्ट्रीम. एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू सेंड समथिंग टू अनदर सिस्टम, either to the client or either to the server, it is called as an output stream. ये दो चीज़ें बहुत समझना जरूरी है, इनपुट स्ट्रीम कब यूज़ करना है, आउटपुट स्ट्रीम कब यूज़ करना है. सो इनपुट स्ट्रीम जब भी आप यूज़ करेंगे, यू हैव टू यूज़ सम लो लेवल एंड हाई लेवल क्लासेस. सो इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास. सो आई एम वर्किंग ऑन डेटा टाइप्स, मुझे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी भेजना है, सो आई विल बी यूजिंग इनपुट, दैट इज डेटा. So low level stream is called the input stream. So I am creating input stream IS. The name of the object is IS. S, what is this S? It is nothing but socket. Socket के बगैर कुछ भी काम नहीं चल सकता, तो socket को हमें यूज़ करना पड़ता है हर बार. So ये S होता है सर्वर का, socket सर्वर का है, ये socket हमने बनाया S, नाम हमने सेम दिए है क्योंकि आप में फिर एम्बिग्यूटी नहीं होती, तो हमने नाम एक ही दे सकते, कोई दिक्कत नहीं. The name of this object is S for your client socket and this is S for server socket. तो आप ये यूज़ करो. Here you cannot create because this is lower class, you cannot create object direct because this is abstract input stream. Abstract होने के वजह आप इसका object नहीं बना सकते directly. So explicitly I am creating an object that is using a socket class. So a socket dot get input stream, and this input stream that is 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 being used, transmitted. This IS is transmitted to data input stream. I am creating an object of data input stream and this is name is called as a DIS. So input stream and data input stream. Same way output stream for sending something and data output stream. ध्यान में रखना है, input stream is what you call as an abstract class. Output stream is an abstract class, so you cannot use directly using a new keyword. I have to use socket object. So socket का object S होता है, S dot get input stream. Same way S dot get output stream. So इनपुट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो गेट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो गेट आउटपुट स्ट्रीम. और ये जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इनपुट स्ट्रीम का IS और आउटपुट स्ट्रीम का OS, यू हैव टू पास दैट ऑब्जेक्ट टू योर डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड योर फॉर योर डेटा आउटपुट स्ट्रीम. और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये आपका काम करेगा इन रन टाइम में डेटा लेने का और देने का. ये दो लाइन का कोड आपको लिखना मैंडेटरी हो जाता है व्हेन एवर यू राइट अ कोड फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम. नाउ हाउ टू स्टार्ट. Now how to start, there is a most important thing कि हमें चालू कहाँ से करना है. So first we will be writing a program for a client and second one will be writing a program for your server. Then how to run this program, तो हमने अभी छोटा सा overview करेंगे. We'll write a program for your server. तो I will be writing a server program. 2 packages ये मैं run time में run करके दिखाता हूँ and then after that I will be running this program. Now see, whenever I am writing a code, we have to write a client echo Java program. उसको कंपाइल करो, सर्वर के प्रोग्राम को कंपाइल करो. अभी दोनों कंपाइल करने के बाद बेसिकली अगर आपके पास आईडी नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने पड़ते हैं. एक सबसे पहले सर्वर को रन करना पड़ता है, उसके बाद क्लाइंट को रन करना पड़ता है. इट्स वेरी सिंपल. सो विल डू दिस एग्जाम्पल एट अ लाइव नाउ and we'll stop for the session today for the ecosystem. Tomorrow session will be somewhat different. We'll be expanding this TCP protocol in more detail. Now ये ध्यान में रखने के लिए, now here readymade I have created one project called as a server socket programming. उसके अंदर मैंने एक सोर्स के अंदर एक पैकेज बनाया इको नाम का और उसके अंदर मैंने ये कुछ प्रोग्राम्स लिखे. Now ये सर्वर का प्रोग्राम है, फर्स्ट वन. Now what is there in server? Here it is package, यानी ये फोल्डर के अंदर मैंने बनाया, इसके वजह से ये पैकेज आ चुका है. Now here I have to import 2 things. One is IO package. अगर मैंने IO package नहीं यूज़ किया तो you will see there will be an error in input stream and output stream. यहाँ पर वो error आ रहे हैं because ये input stream and data input stream, output stream and data output stream, ये सब कुछ आपके IO package के. Okay. अगर मैंने java.net पैकेज को मैंने अगर कमेंट डाल दिया तो ये सर्वर सॉकेट नाम की जो क्लासेस है, सॉकेट नाम जो है, ये सब कुछ इस नेट पैकेज के अंदर है. सो हम वी हैव इंपोर्टेड दिस 2 पैकेजेस, IO पैकेज एंड .NET पैकेज. ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड एज अ इको सर्वर बिकॉज आई एम राइटिंग फर्स्ट सर्वर एंड देन आफ्टर दैट क्लास. नाउ ये प्रोग्राम जो है हम क्या बना रहे, विल बी सेंडिंग समथिंग फ्रॉम अ क्लाइंट. ये क्लाइंट का प्रोग्राम कुछ तो भेजेगा. यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं राहुल भेज रहा हूँ या फिर मैं बोलूँगा welcome to server socket
प्रोग्राम, ऐसे नाम का मुझे कुछ मैसेज भेजना है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, और सर्वर क्या करेगा, उसको फिर से पीछे भेजेगा। सर्वर कुछ नहीं करेगा, सर्वर उसको जैसा आया है वैसे खुद के पास वो डिस्प्ले करेगा और फिर से बैक उसको रिप्लाई करेगा। वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ, सोर्स फॉर्मेट। So I am writing something into main function, everything will be written into main function, and I am writing try catch because server socket ये जो भी हम यूज़ करेंगे there will be an exception, तो हमें ये exception handle करने के लिए we have to write something into this try catch block. So port number, I want to start my port because ये server का प्रोग्राम, मुझे कौन से पोर्ट से मेरा काम करना है। So I will be using 8080 पोर्ट, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं वो यूज़ करूँगा 6666 पोर्ट, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था। मैं यहाँ पर कुछ भी पोर्ट यूज़ कर सकता हूँ ग्रेटर देन 1024, ये पोर्ट से कुछ भी बड़ा वाला पोर्ट यूज़ सकता है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 4x6। नाउ जैसे मैंने बताया कि हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे सर्वर सॉकेट का, बिकॉज सर्वर में सबसे पहले हमें उसका स्पेशल इफेक्ट उसको पावर देना है, तो वी हैव टू यूज़ द क्लास कॉल्ड एज सर्वर सॉकेट। द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज SS and I am passing this port number. What is the port number? 6666. So I have created an integer and I have given the name of that integer variable port. So I am passing that port number here, and as soon as this is being created I am giving a message that is server started, क्योंकि सर्वर चालू हो चुका है। नाउ हमें सर्वर कभी भी बंद नहीं होता, ध्यान में रखो, सर्वर इज ऑलवेज स्टार्टिंग। सो आई हैव टू राइट अ कोड इनटू अ व्हाइल लूप। ये व्हाइल लूप क्यों लिखा है? बिकॉज सर्वर ने स्टॉप नहीं होना चाहिए। सो we are writing endless loop. So what is that? While with true condition it is endless loop. जब तक हम उसको explicitly stop नहीं करेंगे तब तक ये stop नहीं रहेगा, चालू रहेगा, because the condition will never goes for false. So अगर हमने ये ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे ये हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ना हमें एग्जीक्यूट करना क्या है? तो हमें सबसे पहले करना है कि ये जब भी रन होगा तो हमें जो भी क्लाइंट इंटरेक्ट करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चालू करना है। सो इंटरेक्शन के लिए विल बी यूजिंग एक्सेप्ट। एंड व्हाट इज दिस SS? What is this SS? SS is nothing but a server socket object. So server socket dot accept, and as soon as it is getting accepted, जैसे client उसके साथ accept हो जाएगा, it will be creating an object of socket S. So अगर उसको कुछ ने connect कर दिया तो automatically the value will be passed to the socket object S. अब ये connection हो चुका है। Input stream, बिकॉज अभी मुझे क्या करना है, क्लाइंट से कुछ तो भी लाना है और सर्वर के ऊपर पहले लाना है। सो आई वॉन्ट टू गेट समथिंग, सो इनपुट स्ट्रीम, मेरे प्रोग्राम में इनपुट आ रहा है, सो आई एम यूजिंग इनपुट स्ट्रीम। S is nothing but socket. I am not using object of server socket. Server socket object is only used for the purpose of accepting the client request. एक बार एक्सेप्ट कर दिया आपका काम खत्म। अभी सिर्फ सॉकेट का ही ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है कनेक्शन के लिए, टू एंड फ्रो रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस के लिए। अभी इनपुट मतलब क्या, क्लाइंट ने वहाँ से कुछ भेजा है, सर्वर ने उसको एक्सेप्ट करना है, यानी इनपुट आ रहा है। सो आई एम यूजिंग इनपुट स्ट्रीम। It is an abstract class, so we are not using a new keyword, we are directly using socket object dot get input stream. Then वो लो लेवल है, उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करना है, हमें जो लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो उस लैंग्वेज में, बिकॉज यहाँ पर बाइनरी बाइट्स में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर हम डेटा टाइप्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हमने इनपुट स्ट्रीम का वो हमने पैरामीटर बन के इसके अंदर भेज दिया। सो ये दो लाइन आपको समझ में आए। एंड देन आई वॉन्ट टू यूज़, जो भी मुझे आया है उसको मुझे रीड करना है। सो इट इज़ रीड UTF। UTF मतलब यूनिफॉर्म ट्रांसफर फॉर्मेट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अगर आपको रन टाइम में स्ट्रिंग में जो भी आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, अगर आपको इंटीजर रीड करना है दैट इज रीड इंट, आपको फ्लोट यूज करना है, फ्लोट लेना है तो रीड फ्लोट, आपको डबल रीड करना है रीड डबल, बट आपको स्ट्रिंग को रीड करना है तो इट इज रीड UTF। देयर इज नो कॉल्ड एज अ रीड स्ट्रिंग, देयर इज ऑलवेज रीड UTF। व्हाट इज UTF? यूनिफॉर्म ट्रांसफर फॉर्मेट। यूनिफॉर्म ट्रांसफर फॉर्मेट यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर नंबर आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, कुछ भी आता है तो उसके वजह से उसके दिस यूनिफॉर्म। सो आई विल बी रीडिंग यूजिंग अ डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS, एंड आई विल बी स्टोरिंग इनटू माय लोकल वेरिएबल। मेरे लोकल वेरिएबल का नाम क्या है? S वैल्यू, दैट इज सर्वर वैल्यू। सो आई विल बी स्टोरिंग इनटू दैट, और जो भी मुझे मैसेज आया है क्लाइंट के पास से मैं वो पहले डिस्प्ले करूँगा, और उसके बाद जैसे आया है मुझे वैसे उसको फिर से पीछे भेजना है। तो मैं उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन नहीं करने वाला, जैसा आया उसको वैसे भेजना, बिकॉज आई एम राइटिंग अ कोड फॉर इको। इको मतलब क्या? जैसे कोई आप बड़े से
अगर आप कोई हिल स्टेशन में गए और अगर आपने बहुत जोर से चिल्लाया, आपके खुद का नाम लिया एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से पीछे आपको सुनाई देता है। तो वो जो मैकेनिज्म होता है इज कॉल्ड एज इको। सो सेम वे वी आर सेंडिंग समथिंग फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, और सर्वर उसको फिर से वही चीज़ को फिर से पीछे भेज रहा है। तो हमें फिर से पीछे भेजना है, तो फॉर दैट पर्पस आउटपुट स्ट्रीम, जैसे इनपुट स्ट्रीम था उस तरीके से हमने आउटपुट स्ट्रीम, वही सॉकेट का ऑब्जेक्ट यूज़ किया, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम, यानी हम डेटा डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं। सो डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ किया, एंड वी आर यूजिंग राइट यूटीएफ। यहाँ पर हमने रीड कर लिया था, इनपुट स्ट्रीम विल ऑलवेज यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज अ रीड यूटीएफ, आउटपुट स्ट्रीम विल ऑलवेज यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज अ राइट यूटीएफ। और हमारा काम खत्म हो चुका है, सॉकेट का काम खत्म, सॉकेट क्लोज, एस डॉट क्लोज। और वाइल लूप के बाहर हमने कैच स्टेटमेंट से आईओ एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आएंगे हमने उस सभी एक्सेप्शन को उसको हैंडल किया। आर यू क्लियर विथ सर्वर नाउ? सर्वर इज ओनली विद इट्स पोर्ट नंबर, सर्वर को सिर्फ उसका खुद का पोर्ट नंबर चाहिए। सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाए, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाए जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग द सॉकेट, इनपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग समथिंग, आउटपुट स्ट्रीम फॉर राइटिंग समथिंग। काम खत्म हुआ, सॉकेट को हमने क्लोज कर दिया, एक्सेप्शन हमने हैंडल किए, जो भी एक्सेप्शन आ सकती है इस प्रोग्राम के अंदर। आर यू क्लियर विद सर्वर नाउ? यस, Yes, sir. ओके। नाउ इन क्लाइंट, क्लाइंट का बहुत सिंपल है, अगर आपने एक कोड लिखा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। सो सोर्स फॉर्मेट, so same way I am using two packages, IO package and .NET package. now क्लाइंट को दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए सर्वर, अगर मैं मेरे खुद के कंप्यूटर पर रन कर रहा हूँ, सो आई एम राइटिंग माय लोकल होस्ट। अगर आपको दूसरे के ऊपर भेजना है तो उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। वो अगर आप लैब में जब भी आएंगे, जब भी हमारे कॉलेज चालू हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे किस तरीके से हम दो कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपका सर्वर दूसरा कंप्यूटर बनाना है, ये कोड जो आपने बनाया था ना, ये कोड ये उस कंप्यूटर में डालना है और उसका आईपी एड्रेस लेके यहाँ पर आना है और वो आईपी एड्रेस यहाँ पर डालना है। अभी यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर बोला था 6666, तो मुझे सर्वर का नाम भी पता होना चाहिए और मुझे उसका पोर्ट नंबर भी पता हो। अगर मैंने गलती से अलग पोर्ट यूज़ किया, दिस विल नेवर रन। नाउ मेरे सर्वर के अंदर इज पोर्ट नंबर इज 6666, सो आई विल बी यूजिंग अ पोर्ट नंबर कॉल्ड एज अ 6666। तो सर क्लाइंट को सर्वर का नाम पता होना चाहिए, सो आई एम यूजिंग अ वेरिएबल कॉल्ड एज अ सर्वर, और सर्वर का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। खुद का कुछ पता नहीं रहा तो भी चलेगा, सर्वर का पता होना बहुत ज़रूरी है। नाउ कौन सा मैसेज मुझे भेजना है? आई वॉन्ट टू सेंड दिस मैसेज, वेलकम टू द सर्वर सॉकेट प्रोग्राम, इतना बताना है मुझे उनको, इतना मैसेज मुझे उनको देना है। ओके, नाउ देयर इज नो वाइल लूप, क्योंकि मुझे कनेक्शन कंटिन्यूस नहीं रखना है। मुझे मेरा काम हो गया, बात खत्म, मैंने यहाँ से कुछ भेजूंगा, मुझे वो फिर से पीछे चाहिए। नाउ यहाँ का सॉकेट थोड़ा अलग है। यहाँ का सॉकेट कैसा था? सॉकेट एस इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, पर जैसे मैंने बोला सॉकेट का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है क्लाइंट के अंदर, सो विल बी यूजिंग अ न्यू सॉकेट, और उस सॉकेट में हमें दो पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं, वन दैट इज सर्वर, दैट इज लोकल होस्ट, एंड सेकेंड पैरामीटर इज उस सर्वर का कौन सा पोर्ट नंबर है। तो हमें सर्वर का नाम पता होना चाहिए और उसका कौन सा पोर्ट आपका ये काम करने वाला, ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देने वाला है, तो ये पोर्ट नंबर देने वाला है, वो पोर्ट नंबर चाहिए। रेस्ट सेम मैकेनिज्म, पहले मुझे भेजना है तो आई एम यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम, सेम राइटिंग मैकेनिज्म एंड राइटिंग समथिंग, सो राइट यूटीएफ एंड वैल्यू, क्योंकि मैंने कुछ तो भी वैल्यू में लिखा, तो वैल्यू में यहाँ पर लिखा, सो आई एम सेंडिंग दिस वेलकम सर्वर सॉकेट, सो आउटपुट स्ट्रीम ओ एस इज इक्वल टू सॉकेट, यही सॉकेट है, ये अलग तरीके का सॉकेट, दिस इज क्लाइंट सर्वर, सो इट इज़ न्यू सॉकेट, सर्वर का नाम विथ पोर्ट नंबर। तो ये सॉकेट आ जाएगा, ये डेटा आपने जो भेजा है उसको राइट करेंगे। सो ये रीड कैसे करेंगे आप? यू विल बी रीडिंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, हम टॉप से बॉटम को रीड नहीं करते, यहाँ पर हम बॉटम से टॉप करते, सो डी ओ एस के अंदर हम लिखेंगे, so write utf function will be writing the value, what is the value, welcome to the socket, will be writing on dos. Now what is dos? Data output stream is nothing but object of data output stream, but that is containing some output stream. And what is output stream? It is low level abstract class that will be transmitting through network. So output stream is nothing but object of output stream, but ये क्या है? This is nothing but a socket डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, सो सॉकेट के साथ वो कनेक्ट करेगा। सो व्हाट इज एस? एस इज नथिंग बट अ सर्वर विथ पोर्ट नंबर 6060,
तो ये हम रीड इस तरीके से करेंगे, हमने भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉकेट की तरफ पहुंच जाएगा, ये सॉकेट को वो पहुंच जाएगा. And then after that it will be sending something after its work, so we'll be accepting using input stream, data input stream and using a read UTF. और जो भी हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा वो हम बोलेंगे रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, और वो हमने इस वेरिएबल में रीड किया है बाय यूजिंग अ रीड UTF, और हमने इस वेरिएबल में डाल दिया और ये डिस्प्ले कर दिया. हमारा काम खत्म हो चुका है, सॉकेट को हम क्लोज करेंगे. और ये जब भी हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ IO बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑलवेज क्रिएट एन एक्सेप्शन, सो वी हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन कॉल्ड एज एन IO एक्सेप्शन. समझ में आया सबको कोड? इट्स वेरी सिंपल. यस यस एवरीवन? यस यस सर. ओके. सो नाउ रनिंग मैकेनिज्म, मुझे ये रन करना है. तो मुझे सबसे पहले क्या रन करना है, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बोला है, फर्स्ट आई हैव टू रन सर्वर. डोंट एवर ट्राई टू रन द क्लाइंट फर्स्ट. सो फर्स्ट यू हैव टू रन सर्वर. रन सर्वर फर्स्ट एंड देन रन क्लाइंट. सबसे पहले अगर आपने google.com डाल दिया तो गूगल ने आपका रिक्वेस्ट आने के बाद चालू होना चाहिए कि उसके पहले. गूगल ये सर्वर है, ये हमेशा चालू रहता है. क्लाइंट आपका काम है तब जाके आप पिंग करते हैं google.com. सेम वे यहाँ पर हम सबसे पहले रन करेंगे सर्वर को. सो आई एम सेइंग राइट क्लिक एंड आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम इन जावा एप्लीकेशन. सर्वर स्टार्टेड. मैसेज आना चाहिए सबसे पहले, तो देखेंगे हम यहाँ पर आ रहा है क्या वो. ओके. JVM bind catch is already in use. Okay. कुछ तो एरर आ रहा है क्या इसका? So 66 port number is not working, so we'll go for 7070. यहाँ पर भी हम जाएंगे 7070. So I'm running this program, I'm running this one. तो बहुत बार पोर्ट का इशू आता है. Now see, started. पोर्ट नंबर का हमेशा इशू आता है कभी. Now this server is started. Now what is this program? यहाँ पर मैंने लिखा इको सर्वर. जावा प्रोग्राम के अंदर मैंने कहाँ पर डाला वो सर्वर किया. नाउ ये मेरी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई है और मैंने कुछ भेजा नहीं, क्योंकि मुझे क्या भेजना है वो जो मैंने एग्जांपल दिया. मैं अभी क्लाइंट को क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को, क्लाइंट को, और क्लाइंट में से मैं क्या भेजना चाहता हूँ, वेलकम टू सर्वर सॉकेट प्रोग्राम. अभी मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड आई एम सेंडिंग रन. सी वेलकम टू सर्वर सॉकेट. मुझे फिर से रिप्लाई है, मैंने ये वैल्यूज को भेजा एंड दिस इज रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर. और हम देखेंगे भाई सर्वर में है क्या वो. See the response is back and I am checking on a client now. ये कहाँ पर गया? वन सेकेंड, ये विंडो क्लोज हो गया मधी. ओके. Now see server is started. देखो पोर्ट नंबर चालू हो गया ना मेरा. सर्वर वो चालू हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है. आई नीड टू स्टॉप दिस सर्वर. कंसोल इज नॉट डिस्प्लेड. सो ओके, ये प्रोग्राम मैं कंसोल में रन करके दिखाता हूँ, बिकॉज कंसोल में क्या होता है ज़्यादा करके आपको यहाँ पर समझ में आता है. जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में ये प्रोग्राम को थोड़ा मैं कॉपी करता हूँ. मुझे पहले चेक करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट अलाउ करता है क्या, CMD. ओके, आई विल शो इट कंसोल टुमारो. बट ये आप रन करके देखो, क्योंकि मेरे पीसी में क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सेटिंग चेंज किया और मेरा कंसोल जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट वो थोड़ा गायब हो जाता है हमेशा, तो मुझे उसको ढूंढना पड़ता है हमेशा. भी हाँ देखो यहाँ पर आया. दिस इज वन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रन इट. ये कंसोल बहुत आ गया, इसका आ गया. ये भी चालू था, मिल गया. तो आई विल क्लोज दिस वन. अभी ये हम स्टार्ट करेंगे. I'm running the server first. Port number is same. Run Java program.
So देखो server started, message will be displayed on a screen. One second, देखो server started. Now I'm running a client. Now see there are multiple console over there. So there is only nothing is there is only one program running. So now I'm running the server client now. Right click, I'm running the client now. Now client will be sending a message and it will be getting back reply immediately. उसको मैसेज आया, उसका काम खत्म हो चुका है. अब मैं सर्वर पे दिखता हूँ. नाउ दिस इज माय सर्वर. सर्वर के ऊपर दिखता है, देखो अ क्लाइंट मैसेज वेलकम टू सर्वर सॉकेट प्रोग्राम. ये मैसेज आया, मैं सर्वर बंद नहीं है, अभी तक चालू है. मैं फिर से एक बार क्लाइंट को रन करता हूँ और एक बार रन. देखो आया रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. सर्वर को आया और मैं क्लाइंट में दिखता हूँ. और दिस इज इन सर्वर. देखो 2 रिप्लाई आए चुके. जितने बार मैं रन करूंगा उतने बार वो कनेक्ट हो जाएगा, उतने बार वो रिप्लाई उसको भेजेगा. तो हाउ इट इज रनिंग, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो client, once it is started, server is started, it will first show this message and then it will go into while loop. while loop मतलब क्या है, ये it is endless loop. जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये चालू रहेगा. now client object, as soon as I am running this program, the client port, server name will be transmitted to the socket. Socket will be ready and it will send some message using data output stream. मैसेज क्या भेजेंगे आप, वेलकम टू सर्वर सॉकेट. ये मैसेज वो भेजेगा यूजिंग राइट यूटीएफ और वो रुकेगा. तब ये क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद क्लाइंट विल बी एक्सेप्टिंग यूजिंग इनपुट स्ट्रिंग और वो आने के बाद खुद के मशीन के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा. जैसे यहाँ पर उसने डिस्प्ले किया है वेलकम टू, जैसे क्लाइंट ने उसको बोला क्लाइंट मैसेज वेलकम टू, ये वैल्यूज में आ चुका है वेलकम टू सर्वर सॉकेट प्रोग्राम. ये उसको मैसेज आया, उसने डिस्प्ले कर दिया और उसने फिर से वही मैसेज को फिर से बैक कर भेज दिया. जैसे बैक भेज दिया, क्लाइंट के अंदर वो आया, क्लाइंट ने उसको इनपुट स्ट्रीम से उसको रीड किया एंड आफ्टर दैट इट इज बीन डिस्प्लेड दैट रिस्पॉन्स ऑन योर सर्वर. तो उसने ये आउटपुट में दिखा रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर और जो मैसेज उसने भेजा था वही रिस्पॉन्स उसको बैक बोल के रिप्लाई आ चुका है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए इको. जो हमने भेजा वही हमें पीछे रिप्लाई बन के आया है. So are you clear with this? Very simple programming. There are limited steps you have to follow whenever you go for the programming this running this program. Yes. Yes. Any problem? No problem. No, sir. Okay. So tomorrow again No, tomorrow again we'll be going into writing some programs using this. हम कुछ mathematical operations करेंगे और हम जितना हो सके उतना इलाबोरेट करेंगे कल के सेशन के अंदर. विल टुमारो डायरेक्टली एंटर इनटू द प्रोग्रामिंग ऑफ यूजिंग टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल. टिल देन टेक केयर एंड विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग आल्सो एंड टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद द टेस्टिंग सिलेबस आल्सो. एग्जाम के टाइम टेबल अभी तक आया नहीं, एग्जाम का अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, एग्जाम का अभी तक आपके पास एग्जामिनेशन का फॉर्म भी नहीं भरा है. मेरे सिर्फ 2 बड़े चैप्टर्स रहे एंड ये 2 हफ्ते में मेरे ख्याल से हमारा ये चैप्टर 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा. जेएसपी भी वेरी सिंपल है, हम उसको भी बहुत फास्ट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीट करेंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग यू शुड राइट योर प्रोग्राम्स डेली. ये प्रोग्राम्स मैं शेयर करता हूँ पोर्टल के ऊपर, आप इसको लिखो, इसको कंपाइल करो और इसको रन करो. जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे तब तक आप इसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आपको 2 प्रोग्राम्स को रन करना पड़ता है. अभी कल के सेशन में आई विल बी रनिंग इट मैन्युअली विदाउट यूजिंग योर एनी आईडी. इस यही प्रोग्राम को हम कंसोल के ऊपर रन करके दिखाएंगे तो आपको इसका दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा. ओके, टिल देन टेक केयर. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम. टुमारोज लिंक विल बी अगेन रीजनरेटेड एंड विल बी सेंड टुमारो. ओके, सो टिल देन टेक केयर. गुड डे. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Okay, sir. Thanks.